Good morning, welcome you all in our next lecture now. We are studying mathematical logic, and in the last lecture we have seen some examples of exercise 1.1, and after that we have seen statement pattern, then logical equivalence, tautology we have seen, contradiction we have seen, also contingency also we have seen, how to create the truth tables, that tricks also we have seen in the last lecture. Now let us see some examples from exercise number 1.2. Exercise number 1.2. Let us see some examples from this exercise. First question is, construct the truth tables. Question number first, construct the truth tables of the following statement patterns. First one, we have to construct the truth tables, and the compound statement pattern, it is given by P implies Q and Q, P implies Q and Q again implies P. While constructing a truth table, some things we have to remember. First of all, what you have to do, you have to consider that statement as S for statement pattern. What we do, we consider that statement pattern as yes. So let us consider S as the statement pattern. It is given P implies Q and Q, which implies P. Now yesterday we have seen the rule for constructing a truth table. How many statements are used? Here P and Q, two statements are used, as we see there. Though P is repeated twice, Q is also repeated twice, but P and Q are only two statements. There is no R and S statements, so only two statements are used. How many connectives are used there? 1, 2, 3 connectives are used. Two statements are used, 3 connectives are used, so it is clear that that should be the truth table having 4 number of rows. First thing is very clear. And after that, how many number of columns? That are only 5 columns are there, because 2 statements and 3 connectives. Yesterday we have seen the number of statements, 2 raised to number of statements, that is the number of rows in the table, and number of statements plus number of connectives, that is number of columns in a truth table. So we have considered that statement pattern as yes, that is the first stage. So let us draw the truth table. Here is P, Q, then P implies Q, after that P implies Q, and final column is S. That S is this given statement pattern. The things we require in a statement patterns, we make the simple and all the columns of those particular things which we require to create truth tables. How many columns are generated now? First column is of P, second is of Q, then third, fourth and fifth. Our criteria is fulfilled. Number of statements plus number of connectives equals to number of columns. So number of columns are satisfied, condition is satisfied. Now what about the number of rows? कितने बनेंगे number of rows? हमें पता है क्या, हमने कल देखा था 2 raised to number of statements. That number gives the number of rows in a given statement pattern. Now 2 raised to, here are 2 statements. 2 raised to 2 means 4. So 4 number of rows are there, and out of those 4, yesterday we have seen 50% में उसको तोड़ देना है. So 2 number of statements out of 4 are true, and remaining 2 are false. Total 4 number of rows were there. Out of those 4 rows, 2 are true and 2 are false. While writing the truth values of Q, again we have to divide that number by 50%.
Again 2 are true here, so while writing the truth values of q, true here is false. Again these are 2, so two false values, first is true and second is false. That is the theme to write the values of truth values of q. p में क्या किया था हमने, टोटल नंबर ऑफ रोज थे 4, तो उसको 50% कर दिए, 2 ट्रू लिख दिए, 2 फॉल्स लिख दिए. क्यू के ट्रूथ वैल्यूज राइट करते समय उनको फिर से 50% में डिवाइड करना है, फिर से 50% में डिवाइड करना है. सो 2 नंबर ऑफ वैल्यूज आर ट्रू, देन 1 is true, 1 is false. Here also 2, so 1 is true, 1 is false. That is the truth value of q. Now p implies q, कंडीशनल स्टेटमेंट. इसका ट्रूथ वैल्यू हमें पता है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या हो जाता है, ये तो ट्रू ही रहेगा, कोई बात नहीं. फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, नाउ इट इज फॉल्स. इट इज ट्रू एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज अगेन ट्रू. ये तो हमने देखा था भाई, कंडीशनल का ट्रूथ टेबल देख लीजिए एक बार फिर से. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, देन देयर कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू वी हैव सीन. सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, false implies true is true, and false implies false is also true. Next one, p implies q and q. See, p implies q and q. Now though these are p and q, but this bracket p implies q, we have already finded out the truth values of that bracket. We have already finded out the truth values of this p implies q. So this p implies q and q means this is q. So true and true, true and true, that is true. False and false, that is false. True and true, that is true. And true and false, that is false. हमें पता है and मतलब कंजंक्शन, दोनों के दोनों ट्रू आएंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा. सो दोनों ट्रू थे तो ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू फिर से ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू आएंगे तो ट्रू आता है. ये हमारा कंजंक्शन का डेफिनेशन है. अभी एस मीन्स दिस स्टेटमेंट. सो पी इम्प्लाइज क्यू मीट क्यू मीन्स दिस इम्प्लाइज पी, दिस इम्प्लाइज पी, दिस कॉलम इम्प्लाइज पी, दैट इज द ट्रूथ वैल्यू वी हैव टू राइट इन एस. सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, दैट इज ट्रू. फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, अगेन ट्रू. ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, दैट इज false, because conditional statement says first truth value is true, second truth value is false, then that conditional statement is false, and false implies false is again true. So this last column represents the truth value of the given statement pattern. That is the example number 1. You can take a record of this in your notebooks. चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. P and negation Q if and only if P implies Q. Again, how many number of statements are used? कितने यूज किए हैं? P और Q, 2 स्टेटमेंट्स यूज किए हुए हैं. सो सीधी सी बात है, 2 स्टेटमेंट्स है तो उसमें फिर से कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे? तो 4 आएंगे. ओके, सो लेट्स कंसिडर फर्स्ट. लेट S is the statement pattern. P implies Q if and only if P implies Q. P and negation Q if and only if P implies Q. So ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. फर्स्ट कॉलम तो बाय डिफॉल्ट हमारा P का होता है, सेकेंड वन Q. देन अभी देखिए 2 स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, कितने कनेक्टिव्स है देखिए वहाँ पे 1, 2, 3 and 4. 2 number of statements and 4 number of connectives. So there are 6 number of columns. So next one, here we require negation Q, then P and negation Q, then we require P implies Q, and in final stage we require the statement pattern S. So 2 number of statements, so how many number of rows? कितने आएंगे भाई? 2 statements है तो 2 raised to number of statements, मतलब 2 का दुगना कर दिए, स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए, कितना गया? 4. सो 4 नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यूज आर देयर फॉर P. सो आउट ऑफ द 4 ट्रूथ वैल्यूज, 2 of them are true and 2 of them are false. While writing the truth values of Q, again we have to divide that in 50%. First is true, false, again true, again
फॉल्स। निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, ये निगेशन ऐसी चीज़ है भाई, ये क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। सो याद रखना है, निगेशन क्या करता है, ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। सो देखिए निगेशन ऑफ क्यू, सो इसका निगेशन यहाँ पे लिखना है। सो ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, ये इसको फॉल्स कर देगा, ये निगेशन फॉल्स को ट्रू कर देगा, इसको फिर से फॉल्स, इसको ट्रू कर देगा। सो ट्रू को फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया निगेशन ने, हमने नहीं किया, निगेशन ने किया उसको, ठीक है, याद रखना है। फिर P मीट निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, ये दोनों कॉलम्स का एंड लेना है। एंड मतलब कंजंक्शन का, क्या कहता है कंजंक्शन का डेफिनेशन, दोनों के दोनों अगर ट्रू हो तो कंजंक्शन ट्रू हो जाता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। चलो देखते हैं क्या आता है। P एंड निगेशन Q, ये P का कॉलम हो गया, P का कॉलम यहाँ पे और निगेशन Q कहाँ पे, ओ यहाँ पे। चलो दोनों का एंड कंजंक्शन लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, ये फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फिर से फॉल्स हो जाएगा। आफ्टर दैट P implies Q, ये implies implication, if then कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या कहता है कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू पता है हमें, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेकेंड वन फॉल्स होगा, तो कंडीशनल फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू। हाँ तो चलो देखते क्या होता है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, दैट इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ये हो गया ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, फिर से ट्रू, ओनली दिस वैल्यू इज फॉल्स बिकॉज फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉर फॉल्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। फाइनली एस, व्हाट इज एस, P एंड निगेशन Q, इफ एंड ओनली इफ P इम्प्लाइज Q, मतलब ये दोनों का डबल इम्प्लीकेशन करना है। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ गया P इम्प्लाइज निगेशन Q, सेकेंड वन यहाँ पे आ गया P इम्प्लाइज Q, दोनों का क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन। क्या बोलता है डबल इम्प्लीकेशन, ट्रूथ वैल्यू कैसे आता है पता है हमें, क्या अगर दोनों के दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम हो, सिमिलर हो तो वो ट्रू हो जाता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। सो यहाँ पे सेम नहीं है, आंख बंद करके ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ये भी सेम नहीं है भाई, इसको भी फॉल्स, ये भी सेम नहीं है, क्या हो जाएगा फॉल्स, ये भी सेम नहीं है, क्या हो जाएगा फॉल्स। ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, क्या है ये, क्या होता है अगर एक आधा ट्रूथ टेबल अपना लास्ट कॉलम जो है वो ऑल ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा हो तो क्या है वो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्शन। हालांकि हमें इसमें ये पूछा नहीं है ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन, ये नहीं पूछा है, हमें खाली ट्रूथ टेबल बनाना है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है ऑल एंट्रीज आर फॉल्स, सो इट इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, कर लीजिए, नोट कर लीजिए आपके नोटबुक में। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, P implies Q implies R if and only if P and Q, सेकेंड हम एग्जाम्पल हमने लिख दिया P implies Q implies R if and only if P and Q implies with R. Let's find out the truth table of this statement pattern also. So let's consider S as P implies Q implies R if and only if P and Q implies with R. Again, how many statements are used? There are 3 number of statements. So P, Q, R. After that, what we require for the next, Q implies R, then P implies Q implies R, then P and Q, then P and Q implies R, and finally S is our statement pattern. These are the columns we require. Let's see
3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड 1 2 3 4 5 5 कनेक्टिव्स यूज कर दिए 3 स्टेटमेंट से, सो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स आने चाहिए। है कि आपने 8 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉलम्स आर देयर, 3 statements and 5 connectives are used, so 8 number of columns are there, so our criteria of a truth table is satisfied. So let's write down the truth values of P. True, 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 true. 4 of them are true and remaining 4 are false. While writing the truth values of Q, out of the 4, 2 of them are true and remaining 2 are false. Again, out of these 4, 2 of them are true and remaining 2 are falses. While writing the R, true, false, true, false, true, false, true and false. Alternative true false values are there. Q implies R, true implies true is true. Conditional का truth table हमें देखना है, हाँ. True implies false is false. False implies true is true. False implies false, true. True implies true, true. True implies false, false. False implies true is true and false implies false is again true. P implies Q implies R. देखिए ये P का कॉलम आ गया, ये Q implies R आ गया. So true implies true, that is true. True implies false, that is false. True implies true, it is true. True implies true is again true. False implies true, true. False implies false is also true. False implies true, true. False implies true is also true. उसके बाद P and Q and conjunction, both truth values are true, then conjunction is true. So true and true, true. True and true, that is also true. True and false, that is false. True and false, that is false. False and true, false. False and true, false. False and false, false. And false and false is also false. लिख दिए. फिर P and Q implies R. P and Q implies R. True implies true, that is true. True implies false, ये हो जाएगा false. False implies true, ये true. False implies false, फिर से true. False implies true, true. False implies false, फिर से true. False implies true, it is also true. And final one, false implies false is true. Yes, what is yes? Yes is P implies Q implies R, means this column. If and only if P and Q implies R, this column. ये दोनों columns का हमें क्या लेना है? Double implication. Double implication मतलब same truth values then it is true, otherwise false. Let's take the double implication. True if and only if true, same truth values true. False if and only if false, it is also true. True if and only if true, true. True if and only if true, true. True if and only if true again, true. True if and only if true is again true. True if and only if true is true. And final also true if and only if true is true. That last column represents the truth value of given statement pattern. So many examples are there in exercise question number 1 also. You can solve at home. Write down this example and take a record of it into your notebooks. क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स. ट्रूथ टेबल का यूज कीजिए, लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव कीजिए. ट्रूथ टेबल्स का यूज करके हमें क्या करना है, अभी ये लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है इसको प्रूव करना है. सो इफ यू ऑब्जर्व द लॉजिकल इक्विवेलेंस, वी कैन से हियर आर ओनली 2 स्टेटमेंट्स यूज्ड, P and Q. सो लेट्स टेक द लॉजिकल इक्विवेलेंस. इट इज negation of P and Q, P or Q and negation P. चलिए लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है. सो हम हमारे कॉलम्स तैयार करते हैं. P है, Q, उसके बाद negation P and finally negation P and Q. That is the left hand side of the equivalence. Negation P and Q. So P, Q, then negation of P and then negation P and Q. On the right hand side, what we require? First we require P or Q. After that negation P is already there. So P or Q and negation of P. थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ पे करना है.
जब हमने ट्रूथ टेबल्स तैयार किए थे वो प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। थोड़ी सी एक चीज़ हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा करनी है। क्या करेंगे, जो कॉलम्स हमने तैयार किए हुए हैं इसको हम नंबरिंग कर देंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। क्या कर दिया, सभी कॉलम्स को नंबरिंग कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया हमने, हमें जो इक्विवेलेंस प्रूव करना है एट द एंड ऑफ द एग्जाम्पल हमें रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा ना। रिजल्ट के बगैर तो हमें 1 मार्क मिलेगा नहीं, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में हमें रिजल्ट को बहुत इंपॉर्टेंस है। एक रिजल्ट लिखने के लिए कौन कौन से 2 कॉलम्स हमने देखे हैं जो कि सेम आ गए, क्योंकि हमने कल देखा था डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या था डेफिनेशन, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स। समझो ये हो गया एक स्टेटमेंट पैटर्न, निगेशन पी और एंड क्यू, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न, और ये राइट हैंड साइड वाला ये दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न। 2 डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स, दे मे और मे नॉट हैव सेम कनेक्टिव्स। अभी यहाँ पे निगेशन एंड यूज किया हुआ है, यहाँ पे और एंड निगेशन तीनों यूज किए हुए हैं। कनेक्टिव्स आर डिफरेंट ऑन द बोथ साइड्स बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम ट्रूथ वैल्यूज। अभी दोनों का ट्रूथ वैल्यू अगर सेम आएगा सो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कितने नंबर के कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड है और कितने नंबर के कॉलम में राइट हैंड साइड है। ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कॉलम्स के नंबरिंग करना जरूरी है, याद रखना है, ठीक है। सो नंबरिंग कर दिए, 2 स्टेटमेंट्स है, सो 2 देयर आर 4 नंबर ऑफ रोज। Out of the 4 rows 2 are true and 2 are false. After that alternative true false true false. Negation of true, ये P का निगेशन, ये निगेशन क्या करता है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। सो चलिए निगेशन P, ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, और इसका भी निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। सो निगेशन P एंड Q, ये निगेशन P एंड Q, true and false, sorry, false and true, it is false, false and false, false, true and true, now it is conjunction so it is true, true and false it is also false. चलिए P और Q और both are false then it is false, otherwise true। हमें याद है उसका डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल। सो ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज अगेन ट्रू, एंड फॉल्स और फॉल्स ये हो जाएगा फॉल्स। अभी हमारा 6th कॉलम क्या कहता है, P और Q एंड निगेशन P, ये यहाँ पे आ गया निगेशन P, ये आ गया P और Q, दोनों का एंड मतलब कंजंक्शन लेना है। ट्रू एंड फॉल्स इट इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स अगेन इट इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ये हो गया ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इट इज फॉल्स। अभी देखिए ट्रूथ वैल्यूज तो हमने लिख दिए, कोई बात नहीं, लॉजिकल इक्विवेलेंस का रिजल्ट हमें लिखना है। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस की लेफ्ट हैंड साइड हमारे कॉलम नंबर 4 में है और उसका राइट हैंड साइड हमारा यहाँ पे 6 नंबर के कॉलम में। अभी हम 4th और 6th कॉलम अगर ऑब्जर्व करेंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, दैट मीन्स दिस एंड दिस, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न और राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट पैटर्न, दोनों के ट्रूथ वैल्यूज क्या मिले हमें, सेम मिल गए। सो रिजल्ट हम लिखेंगे, कैसा लिखेंगे रिजल्ट, फ्रॉम कॉलम नंबर 4 एंड 6 व्हाट वी कैन से, वी कैन से लिख देंगे निगेशन P मीट Q इज इक्विवेलेंट विथ P और Q मीट विथ निगेशन P एंड फाइनली हेंस प्रूव कर दिया हमने। क्या 4th और 6th कॉलम सेम था, सिमिलर था, तो हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव हो गया। राइट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबुक में, नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए। फिर से लेट्स टेक एन इक्विवेलेंस व्हाट इज गिवन टू यू, P implies Q and R is equivalent with P implies Q and P implies R, that we have to show. So again we create a truth table of this. So first statement is P, then Q, then R. We require Q and R for left hand side. So P implies Q and R, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड के लिए क्या चाहिए, पहले P implies Q चाहिए, उसके बाद P implies R चाहिए, उसके बाद
P implies Q and P implies R चाहिए। सो अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कॉलम्स को नंबरिंग कर देंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, उसके बाद थर्ड वन, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ, उसके बाद सेवेंथ एंड एट्थ कॉलम। ठीक से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फिफ्थ नंबर के कॉलम में है, 5 नंबर के कॉलम में है, उसका राइट हैंड साइड जो है वो 8 नंबर के कॉलम में है। तो हमें पहली बात तो तय है कि जब ट्रूथ वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका ट्रूथ वैल्यू और इसका ट्रूथ वैल्यू सेम आना चाहिए, बिकॉज दोनों इक्विवेलेंट है, ऐसा हमें बोला है, शो करना है। लेट्स राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यूज। 3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर, सो 4 नंबर ऑफ ट्रूज एंड 4 नंबर ऑफ फॉल्सेस। ओके, ये हो गया P का ट्रूथ वैल्यू। ओके, चलो Q, सो 2 नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू, रिमेनिंग 2 आर फॉल्स। फिर से पहले 2 ट्रू आएंगे, उसके बाद 2 फॉल्सेस आएंगे। चलिए R के बारे में क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिर से ट्रू फॉल्स। देखिए 8 नंबर ऑफ वैल्यूज़ थे, 50-50, 4 थे 50-50, फिर से 4 थे 50-50, 2 50-50, 2 50-50। याद आया, उसको टोटल नंबर ऑफ रोज को डिवाइड करना है, 50% ऑफ देम आर ट्रू एंड रिमेनिंग 50% ऑफ देम आर फॉल्स। अगेन उसमें से उसको डिवाइड करते चलना है, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली R का ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू फॉल्स आ जाएगा। चलो Q एंड R एंड कंजंक्शन, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। हो गया। चलिए P इम्प्लाइज Q एंड R, ये P का कॉलम यहाँ पे है, P इम्प्लाइज Q एंड R, ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, दैट इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये भी फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। याद रखना है कंडीशनल स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, देन इट इज फॉल्स। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, अगेन ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ट्रू एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। लिख दिए। अभी देखिए P इम्प्लाइज Q, ये यहाँ पे P और Q, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये भी फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू एंड फाइनल वन फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद P इम्प्लाइज R, ये P का कॉलम है, यहाँ पे R का कॉलम है, बोलिए ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, फिर से ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, इट इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ऑल्सो ट्रू एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ऑल्सो ट्रू। लिख दिए। अभी लास्ट कॉलम क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R, मतलब ये दोनों कॉलम्स का एंड कंजंक्शन लिया हुआ है। चलिए कंजंक्शन का ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं हम लोग, ट्रू एंड ट्रू, दैट इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, अगेन ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। देख लीजिए अपना लेफ्ट हैंड साइड कॉलम नंबर 5 में था ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू, 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 और राइट हैंड साइड हमारा 8 नंबर के कॉलम में था ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू, 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 ट्रू। अभी ये 2 कॉलम्स अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8, तो हमारे ट्रूथ वैल्यूज सेम आ गए, इसका मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो रिजल्ट लिखना है हमें फ्रॉम कॉलम नंबर 5 and 8. What we can say? We can say P implies Q and R is really equivalent with P implies Q and P implies R, and hence we can say hence proved, hence proved.
कर लीजिए भाई रिकॉर्ड अपने नोटबुक्स में। थैंक यू। कौन? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वेरीफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स आर टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, P एंड Q implies Q join P और Q और P। अभी ट्रूथ टेबल फाइंड करना है और उसमें हमें एग्जामिन करना है टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है। चलिए लेट्स टेक S is equivalent with P and Q implies Q or P. So P Q ट्रूथ टेबल ही बनाना है ना, सो P and Q और P and finally P and Q implies Q और P। चलिए दो स्टेटमेंट्स यूज किए। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज? 4। दो स्टेटमेंट्स और 1, 2 and 3 कनेक्टिव्स, सो 5 नंबर ऑफ कॉलम्स, 1, 2, 3, 4 and 5। आवर क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। सो 2 स्टेटमेंट्स, 4 ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। P and Q, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, देन फॉल्स, देन फॉल्स एंड देन फॉल्स। उसके बाद Q और P, Q और P, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, अगेन ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। अभी P and Q implies this, Q join P, Q join P, sorry, P and Q implies Q और P, so P and Q, Q or P, this implies this, true implies true, that is true, false implies true is also true, false implies true is also true, false implies false is also true. So from the last column what we can say? From last column, yes, given statement pattern क्या है ये? All truth values are true. So what is this? It is a tautology. इट इज़ अ टॉटोलॉजी। बस इतना कंक्लूजन हमें लास्ट लाइन में लिखना है। सभी ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू आ गए तो ये टॉटोलॉजी रहेगा, सभी ट्रूथ वैल्यूज अगर फॉल्स आ गए तो वो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, मिक्स ट्रूथ वैल्यू आ गए तो वो कंटिंजेंसी रहेगा। आप आपके नोटबुक में ये भी रिकॉर्ड कर लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल, negation P and negation Q or Q. So again let's take S is the statement pattern, negation P and negation Q or Q. So let's form the truth table of this, P then Q, negation P, negation Q, उसके बाद negation P and negation Q, उसके बाद negation of negation P and negation Q, and final column will be our S. How many statements are used? 2. And how many connectives? 1, 2, 3, 4 and 5. So 7 number of columns are there, 2 plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So our table is correct. Write down the truth values of P, true, true, false, false, उसके बाद true, false, true, false। चलिए negation of P, इसका negation कर देना है यहाँ पे, true का negation false, true का negation फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फिर से फॉल्स का निगेशन ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू, इसका निगेशन यहाँ पे करना है फॉल्स, उसके बाद ट्रू, देन अगेन फॉल्स, ट्रू। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये दोनों का कंजंक्शन लेना है, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स इटसेल्फ, इट इज ऑल्सो फॉल्स, इट इज ऑल्सो फॉल्स एंड इट इज ट्रू, बिकॉज कंजंक्शन बोथ ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू, सो इट इज ट्रू। निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q, इसका निगेशन यहाँ पे करना है, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन फिर से ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स।
और फाइनल है हमारा एस. एस इज द स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ज्वाइन विथ क्यू. ये आ गया फर्स्ट कॉलम. इसका और क्यू के साथ लेना है हमें, और मतलब डिसजंक्शन. बोथ आर फॉल्स, देन इट इज फॉल्स. दिस कॉलम negation of negation p and negation q join with q. So true join with true, that is true. True join with false, again true. True join with true, it is true. And false join with false, it is false. What about this last column? What we can say? क्या कह सकते हैं इसके बारे में? कुछ ट्रू आ गए, यहाँ पे एक फॉल्स आ गया. So it is tautology. It is neither tautology nor contradiction. So therefore given statement pattern is, it is, yes, contingency. It is a contingency. There are so many examples in your exercise also. You can solve using these kind of techniques. So that's all from the exercise number 1.2. We will continue in the next lecture, next topic of the logic. Thank you very much.